week number 13 and lecture number 17. اس سے پہلے ہم نے وہ سب کچھ جو سینٹیلیشن میکینزم تھا ریڈیشن ڈیٹیکٹر میں وہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیٹیکٹر میں ہمارے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کسی ریڈیشن کو، تو اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں گے. اب آئیں گے کہ وہ جو انٹریکشن ہو گئی ہے کسی بھی ریڈیشن کی، چاہے وہ الفا ہے، بیٹا ہے، گیما ہے، یا اینی ہیوی یا لائٹ پارٹیکل ہے، وہ کسی بھی سینٹیلیٹر کے ساتھ جب انٹریکشن اس کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں گے، یا اس کو ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے، یا اس کو ہم کیسے اسٹور کریں گے، اور آگے جا کر اس کو اینالائز کیسے کریں گے. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ڈیٹیکٹر ہے اس کے جو آپریشن ہے وہ 3 ہیں، اور انہی 3 کے بیس پہ ہم جا کر ان ریڈیشن سے، اس ریڈیشن ڈیٹیکٹر سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. مائک آف کیا یار، شور. So there are 3 general modes of operation of radiation detectors. They are called the pulse mode, current mode, and the third one is a mean square voltage mode, or in short MSV mode. 3 قسم کے ہمارے پاس آپریشنز ہیں ڈیٹیکٹر کے، یا جو انفارمیشن ہم آؤٹ پٹ میں لے لیتے ہیں وہ پلس موڈ میں ہوتا ہے، کرنٹ موڈ میں ہوتا ہے، یا مین اسکوئر وولٹیج موڈ میں ہوتا ہے. اب جو پلس موڈ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عام کنڈیشنز میں، لیکن یہ جو دوسرے موڈ ہے کرنٹ موڈ اور مین اسکوئر وولٹیج موڈ، وہ اسپیشلائزڈ ہیں کہ ہمارے پاس اگر پلس موڈ میں وہ انفارمیشن جو ہم لینا چاہتے ہیں اور وہ کلیکٹ نہ کر پائیں تو پھر ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز دا کرنٹ اینڈ دا ایم ایس وی موڈ. سو پلس موڈ از ایزیلی the most commonly pulse mode is easily the most commonly applied of these, but current mode also find many applications. superiority ایک ہی دوسرے پر ہو سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں ریڈیشنز کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. ریڈیشن لائٹ ہے، مطلب ہے ان کی انٹینسٹی کم ہے، ماڈریٹ ہے، یا ہائی ہے، تو وہ ڈفرینٹ موڈس پہ آ جاتی ہے بات. ایم ایس وی موڈ از لمیٹڈ ٹو سم اسپیشلائزڈ اپلیکیشن دیٹ میکس یوز آف اٹس یونیک کریکٹرسٹکس. Now, although the 3 modes are operationally distinct, they are distant from one another. They have their own use, merits, demerits. They are interrelated through their common dependence on the sequence of a current pulses that are the output of our simplified detector mode. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آرگینک کو دیکھتے ہیں، گیس فیلڈ ڈیٹیکٹر کو دیکھتے ہیں، یا سینٹیلیشن ڈیٹیکٹر کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو بیسک چیز ہے وہ الیکٹران ہول کا بننا، الیکٹران آئنس کا بننا، لیکن پازیٹیو نیگیٹو آپ کے پاس چارج ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اب وہ چارج اگر موو کرتا ہے اس کو آپ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کریں ان دا کیس آف گیس فیلڈ ڈیٹیکٹر، تو وہ سویپ آؤٹ کر لیتا ہے لیکن کرنٹ فلو کرتا ہے. اب اگر آپ اس کو سینٹیلیشن اس کے دیکھ لیں یہ آرگینک یا ان آرگینک میں، تو وہی آپ کو الیکٹران ہول پیئر نظر آئیں گے، پھر بھی چارج موبلٹی ضرور ہے، چارج موبلٹی مین کرنٹ. تو یہ جو سارے ہیں آپ کے پاس 3 موڈس، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کرنٹ پلسز کے جو کہ ڈیٹیکٹر کے والیوم میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آپ جا کر ایکسٹرنل سرکٹ میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. سو یہاں پر اب اس لیکچر میں ہمارا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ پلس موڈ پہ ہوگا، کیونکہ ہم جو جس لیول کی ریڈیشنز کو ڈیل کرتے ہیں وہ پلس میں ایزیلی وہ ڈیٹیکٹر ہمارا کام کرتا ہے. لیکن اگر ہارش انوائرمنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ
डिटेक्ट कर रहे हैं कॉस्मिक रेज या उसमें आप कर रहे हैं कोई दूसरा ऑपरेशन है जिसमें कि रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो फिर आप जाते हैं एमएसवी या करंट मोड की तरफ. बट mainly in this lecture we will focus on the pulse mode. So in pulse mode operation, the measurement instrument is designed to record each individual quantum of radiation that interact in the detector. तो pulse mode वही है कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि जो ईच क्वांटा आता है, गेमा है या जो भी है, वो जाकर इंटरेक्ट करता है डिटेक्टर के वॉल्यूम और फिर आगे जाकर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर या इलेक्ट्रॉन्स और आइंस बनते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो आगे किस तरह इसको इंटरप्रेट करते हैं. सो in most common applications, the time integral of each burst of current or the total charge Q is recorded. Since the energy deposited in the detector is directly related to Q, this is most important. आपके पास टोटल चार्ज कलेक्शन होती है या टोटल चार्ज प्रोड्यूस होती है जब भी कोई क्वांटा जाकर या कोई भी रेडिएशन जाकर इंटरेक्ट करता है डिटेक्टर वॉल्यूम के साथ. सो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस प्रोपोर्शनलिटी में आएंगे. कम रेडिएशन के लिए कम चार्ज प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा के लिए ज्यादा होंगे. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चार्ज को कलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप डायरेक्टली एनर्जी को, जो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, उसको आप मेजर कर रहे हैं. So all detectors used to measure the energy of individual radiation quanta must be operated in pulse mode, and such applications are characterized as radiation spectroscopy. अब जो मेजर आप कर रहे हैं डिटेक्टर से, और आप अगर एनर्जी आपको चाहिए तो चार्ज आपके पास कलेक्शन हो गई है, तो चार्ज कलेक्शन के लिए जो बेस्ट मोड है दैट इज द पल्स मोड. और इस एप्लीकेशन को या इस को करेक्टराइज करते हैं रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि वो रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जानते हैं कि उसमें सिचुएशन क्या होती है. नाउ all pulses above a low level thresholds are registered. All pulses above a low level thresholds are registered from the detector regardless of the value of Q. This is often called pulse counting. अब एक लेवल हम पहले से ले आते हैं कि जी हमने इस लेवल से ऊपर वाले चार्जेस को कलेक्ट करना है, इसके नीचे नहीं. मतलब इसका ये है. सो अगले स्लाइड को जरा देखें. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मुख्तलिफ पल्सेस हैं. Now this x-axis पे आपको टाइम और y-axis पे आपको दो लेवल नजर आ रहे हैं, लो लेवल एंड अपर लेवल. LL लो लेवल एंड UL अपर लेवल. अब यहाँ पर मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड के, हाइट्स के आपको, फॉर एग्जांपल ये एक पीक है जो एक सिग्नल शो कर रहा है, ये दूसरा सिग्नल है रेड, और ये एम्प्टी और ये दूसरे हैं. अब ये जो लो लेवल है उसकी एक लाइन है और अपर लेवल की अपनी एक लाइन है. मतलब इसका ये है कि हमने डिटेक्टर को सेट कर लिया है कि लो लेवल से नीचे जितने भी काउंट्स हैं वो सारे नाइज हैं. नाइज का मतलब ये है कि अब अगर आप डिटेक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो डिटेक्टर का मतलब ये होगा कि कोई सेंटिलेटर, उसको आप अटैच करेंगे किसी रीड आउट सिस्टम, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेफिनेटली नॉइज जनरेट करता है. उसकी जो नॉइज है दैट इज नोन एज द बैकग्राउंड. अब ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि कॉस्मिक रेडिएशंस हर जगह मौजूद है, तो एक बैकग्राउंड लेवल मौजूद है पहले से. रेडिएशन इस सारे में नेचुरल रेडिएक्टिविटी मौजूद है, वो भी हमें पता है कि जी जितने भी मटेरियल्स हैं वो एक नेचुरल रेडियोएक्टिविटी शो करती है. इवन हमारा जिस्म भी, उसमें पोटाशियम, सोडियम, ऑल द थिंग्स वी नो दैट वन, वो मौजूद है. जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनमें भी रेडियोएक्टिविटी मौजूद है, रेडॉन गैस मौजूद है, कॉस्मिक रेडिएशंस मौजूद हैं. तो ये सारे मिलकर, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इनकी अपनी, ये सारा एक बैकग्राउंड जनरेट करते हैं.
اب ہمارا ریڈیشن ڈیٹیکشن جو ہے وہ ان انکمنگ سگنلز کے لیے ہونا چاہیے جو اس بیک گراؤنڈ سے اوپر ہے. تو اس کے لیے ایک لو لیول ڈیٹیکٹر میں ہم سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ لو لیول ہے, دس از نون ایز اے تھریشولڈ. اس کے نیچے جتنے بھی سگنلز ہیں وہ سارے کے سارے بیک گراؤنڈ ہیں اور اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور اپر لیول سے اباؤ بھی ایک ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹیکٹر اپر لیول میں کاؤنٹنگ زیادہ ہو گئی ہے تو پھر ہم موڈ چینج کریں گے. موڈ چینج کا مطلب ہے کہ ہم کرنٹ موڈ کی طرف جائیں گے کہ نہیں, ہم جائیں گے ایم ایس وی کی طرف. تو ایک ڈیٹیکٹر ہے وہ پہلے سے ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیٹیکٹر اس ریجن میں آپریٹ کرے گا, اس کے نیچے جتنے بھی سگنلز ہوں گے وہ بھی ہم ختم کر لیں گے, اور اس کے درمیان جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پاس آپریشن کے لیے موجود ہیں. اسی طریقے سے ایک وولٹیج ہے, دا لو لیول, ہائی لیول, اور یہ آپ کو مختلف سگنل نظر آ رہے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے نائز, سو دس از اے نائز. اس کے اوپر ایکسپٹڈ ونڈو کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ ہم نے ونڈو آف اپرچونٹی کے اس میں ہمارے پاس سگنل آئیں گے, اس سے جو نیچے سگنلز ہیں وہ ہم کٹ آؤٹ کر لیں گے. سو دس از نون ایز دا سلیکشن موڈ. تو یہاں پر جو لکھا ہے کہ all pulses above a low level. So low level کا مطلب یہ ہے کہ LL جو ہے یا یہ یہاں پر جو V ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس سے اوپر threshold, this is are registered from the detector regardless of the value of, کیونکہ اس کی ویلیو کتنی بھی ہو, کم یا زیادہ ہو, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن بیک گراؤنڈ ہم نے ریجیکٹ کر دیا. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکٹر کی زبان میں, آپریشن کی زبان ہے, the pulse counting method. It can be useful in many applications in which only the intensity of the radiations is of interest. کہاں پر جو پلس موڈ زیادہ ہے, پلس موڈ کاؤنٹنگ زیادہ ہے, نمبر آف کاؤنٹس اگر زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینسٹی زیادہ ہے, کم ہے تو کم ہو جائے گی. کہ اگر ایک جگہ پہ آپ ریڈیشن کی صرف اور صرف پریزنس معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے کہ کم ہے, تو اس کو آپ پلس کاؤنٹنگ میں لے جائیں نمبرز. فار ایگزامپل اگر یہاں پر ہم ڈیٹیکٹر کے آؤٹ پٹ پہ ایک کاؤنٹر لگا دیں 1 2 3 والا, اور وہ صرف کاؤنٹنگ کرے, تو وہ آپ کو میجر کر کے بتا رہے کہ جی انٹینسٹی کتنی ہے. سو rather than the incident energy distribution of the radiation, تو اگر آپ پلس کاؤنٹ صرف کر رہے ہیں, نمبر آف کاؤنٹس n آپ کو چاہیے, تو پھر آپ انرجی کی بات نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملنے چاہیے کہ کتنے نمبر آف کاؤنٹس آ رہے ہیں, زیادہ یا کم ہے. سو at a very high events rates, اگر ایونٹ ریٹ زیادہ ہو جائے, پلس موڈ آپریشن become impractical. تو پلس موڈ امپریکٹیکل ہو جاتا ہے اور ایون امپاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلس موڈ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے, ٹائم انٹیگرل ہے. ٹائم انٹیگرل کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کا ڈیٹیکٹر جو ہے وہ ایک خاص لیول جو آپ نے لو اور ہائی وہ کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, اس میں اگر فار ایگزامپل ہم 100 کاؤنٹس آسانی سے کر سکتے ہیں, اگر ہم اس کو ڈبل کر دیں, لیٹ سپوز وہ 200 پہ چلا جائیں, تو ڈیٹیکٹر تو اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا لیکن مشکل سے بہت سارے انفارمیشن وہ مس کر جائے گا. لیکن اگر آپ 300 اینڈ سو آن اس پہ جائیں گے تو یہ اتنی زیادہ اس کی کاؤنٹنگ ہو جائے گی کہ وہ ڈیٹیکٹر کا جو کاؤنٹر ہے وہ ایک طرح سے امپریکٹیکل ہو جائے گا, وہ کاؤنٹ نہیں کر پائے گا, اور جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں ہمارے پاس ایرر آ جائے گا, جو کہ ایک انسٹرومنٹل ایرر کہلاتا ہے. تو اس لیے اس کی یہ لمیٹیشن ہے, پلس موڈ کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے. اس کے آگے پھر ہم جاتے ہیں, اگر اس کو ہم ایوریج کر لیں جتنے بھی چارجز ہیں, فار ایگزامپل ہم ایک کہتے ہیں کہ جی ایک سیکنڈ میں ہمارا ڈیٹیکٹر اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے یا آدھے سیکنڈ میں کر رہا ہے, پلس موڈ میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کاؤنٹ زیادہ ہو گئے تو پھر آپ ٹائم زیادہ دیں گے کہ جی چلو اس کو آپ آدھے سیکنڈ کے بجائے 1 سیکنڈ پہ لے جائیں, 1 سیکنڈ کے بجائے اس کو 2 سیکنڈ پہ لے جائیں, لیکن آپ ٹائم کو زیادہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ایرر کے چانسز ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے. تو پھر آپ جائیں گے اس چارجز کو ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم, دیٹ از نون ایز دا کرنٹ موڈ. تو اس کرنٹ موڈ میں پھر آپ ایوریج ٹائم کی بات کریں گے اور ایوریج چارجز کی بات کریں گے. انڈیویجول ہر ایک نہیں ہوگا, جس طرح کہ پلس موڈ 1 آتا ہے آپ 1 کاؤنٹ کرتے ہیں, 2 آتے ہیں تو 2 کاؤنٹ کرتے ہیں, 3 آتے ہیں 3 کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس ریٹس ایونٹ کے زیادہ ہو جائیں گے, ریڈیشنز نمبر زیادہ انٹریکٹ کریں گے ڈیٹیکٹر کے ساتھ, تو پلس موڈ کی اپنی لمیٹیشن ہے
उसके बाद फिर हम जाते हैं एवरेज। तो एवरेज का मतलब ये जाए क्या कि जो चार्ज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप गेट कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द करंट मोड। ओके, सो the time between adjacent event may become, ये उसको explain किया है कि why this pulse mode is impractical in that sense. The time between adjacent event may become too short to carry out an adequate analysis. जो एक रेडिएशन आ रहा है और उसके बाद दूसरा आ रहा है, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर एक डिटेक्टर है और उसको आपने 1 सेकंड का टाइम दिया या आधे सेकंड का टाइम दिया और उसमें आप 100 इवेंट नोट कर रहे हैं, दैट्स ओके, दिस इज अ पल्स मोड। लेकिन अगर वो 200 उस आधे सेकंड में आएंगे तो एक काउंट का और दूसरे जो रेडिएशन है उसके दरमियान जो टाइम गैप अराइवल का है वो कम हो जाता है। तो डिटेक्टर जो है उसकी अपनी एक रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन का मतलब है कि वो दो काउंट्स को अलग अलग काउंट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दरकार है। रश बढ़ता जाएगा काउंट्स की तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो पल्स मोड है वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, एरर आ जाएगा। और द करंट पल्सेस फ्रॉम द सक्सेसिव इवेंट्स में भी ओवरलैप इन टाइम, और जितने भी करंट पल्सेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे में फंस जाएंगे, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। In such cases, one can revert to alternative measurement techniques that responds to the time average taken over many individual events. That's what I told you. कि अब आप अगर एवरेज टाइम आप लेंगे तो वो आपके लिए पल्स मोड से कुछ और जाएगा। दिस अप्रोच लीड्स टू द रिमेनिंग टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन व्हिच इज नोन एज द करंट मोड एंड एमएसवी। जो टाइम एवरेज पे आप चले जाएंगे कि चले हम बहुत सारे काउंट्स कर लिए लेकिन 5 सेकंड के लिए इसकी वो कर ले आप इंतजार कर लें, तो आप टाइम के हिसाब से उसको एवरेज कर लें, तो फिर आप चले जाएंगे करंट मोड की तरफ या एमएसवी मोड की तरफ। तो ये लिमिटेशन है। तो इस वजह से जब करंट मोड पल्स मोड की बात होती है और वो फंक्शन करता है तो फिर हमें करंट मोड और एमएसवी मोड की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर रेट्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा हो जाए तो फिर हमारे पास पल्स मोड काम नहीं करता, देन वी मूव टू द करंट मोड। ओके, now the most important thing, is pulse height spectra. अब जो हमारे पास important है वो है ओके, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट, फिर हम दूसरा स्टार्ट करते हैं जी। सर आवाज हेलो जी। सर ده كده كسان شات كده في التوجه خراب يا سر كاس चेट की सर ممكن سر برسمت وين سكرين مان في الكيك سيرتون فوكس دايورت سر दी चेट वो लिख गई। Sir, the chat disable again, sir. anyway तासु बस सही है। anyway बस बाकी मेस की इंटरप्शन दा से बेच ओके हेलो सर जी। जी। हेलो सर। सर जी कहते हैं कि it is important to recall that because the arrival of radiation quanta is a random phenomena governed by Poisson statistic, the time interval between successive current pulse are also random distribution. सर पदे मंदिर ले ये आप कहाँ से कौन सा स्लाइड आप पढ़ रहे हैं? सर ये जो आप हमें पढ़ा रहे थे जैसे ऊपर एक सेंटेंस है, मेरे पास बुक है तो वहां से मेरे आते हैं, सब्र करो। वो उसमें जब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करते हैं पल्स साइड स्पेक्ट्रम में क्लियर हो जाएगा, राइट? pulse side spectra. Okay, so
when operating a radiation detector in a pulse mode, each individual pulse amplitude carries important information regarding the charge generated by that particular radiation interaction in the detector. So if we examine a large number of such pulses, their amplitude will not be the same. Now, मसला ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पल्सेस को एनालाइज करते हैं या एग्जामिन करते हैं तो इनके एम्पलीट्यूड्स सेम नहीं होते, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है. Now, variation may be due either to differences in the radiation energy or to fluctuation in the inherent response of the detector to monoenergetic radiation. अब ये जो वेरिएशन एम्पलीट्यूड किया जाती है तो उसकी मेन वजह जो है वो मेनली तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो दो है. एक तो ये है कि आपके पास जो रेडिएशन आ रही है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कुछ ज्यादा आ रही है, कुछ कम आ रही है. मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक रेडिएशन सोर्स है या सराउंडिंग में रेडिएशन है, तो वहां पर वो जो रेडिएशंस आपके पास आ रही है क्या वो प्योरली जहाँ से न्यूक्लियस से निकल रही है वो डायरेक्ट आपके पास आ रही है या मल्टीपल इंटरेक्शन के बाद आपके पास आ रही है. तो वो जाकर मल्टीपल इंटरेक्शंस के बाद आपके पास आ रही है तो वो जाकर रास्ते में ही अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे, तो आपके पास जो डिटेक्टर होगा उसको कम जगह रेडिएशन मिलेंगी तो नंबर ऑफ जो चार्ज है वो भी कम प्रोड्यूस होगा, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो उस हिसाब से वेरिएट करेगा. एक तो ये है. दूसरा ये है कि जो हमारा डिटेक्टर है उसका रिस्पांस लीनियर ना हो. लीनियर का मतलब ये है कि वो लो एनर्जी के लिए एक रिस्पांस रखता है. लो एनर्जी के लिए रिस्पांस का मतलब ये है कि लो एनर्जी का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लो एनर्जी के देख लें मे बी इट्स इन द एक्स रेज रीजन. अब अगर हाई एनर्जेटिक है तो वो जाकर सेंटिलेटर के अंदर मूव करके अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर लेता है, तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. लेकिन अगर ये सिचुएशन हो कि अगर एक्स रेज हैं और वो सॉफ्ट एक्स रेज है, फॉर एग्जांपल वो रेडिएशन उस रीजन में आते हैं जहां पर वो गामा रेज एग्जैक्टली टू दैट रीजन हो कि वो एक्स रे सॉफ्ट एक्स रेज रीजन के में आते हो, तो वो सरफेस पे ही डिपॉजिट हो जाते हैं. सरफेस पे डिपॉजिट होने का मतलब उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है. जब पेनिट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है सरफेस पे अगर वो एनर्जी डिपॉजिट करेंगे तो इंटरेक्शन कम होगी, नंबर ऑफ चार्जेस कम होंगे. तो अब मतलब ये हो जाएगा कि जो डिटेक्टर है वो मुख्तलिफ लो लेवल के लिए और हाई लेवल के लिए उसका रिस्पांस लीनियर नहीं है. मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज 1 MeV के लिए वो 100 चार्जेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो होना चाहिए कि 200 जो 2 MeV है उसके लिए 200 चार्जेस हो, 3 MeV के लिए 300 एंड सो ऑन. लेकिन अगर लो एनर्जी में आप चले जाएं और वहां पर वो चीज ना हो जो कि लीनियरिटी से बेस हो तो ये फ्लक्चुएट करता है. तो इस वजह से जो चार्जेस हैं उनके एम्पलीट्यूड में आपके पास वेरिएशन आती है. नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जांपल ये एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन हमने कंसीडर की है. The pulse amplitude distribution is a fundamental property of the detector output that is routinely used to deduce information about the incident radiation or the operation of the detector itself. For example, ये दो किस्म के आपको नजर आ रहे हैं फिगर्स में, y एक्सिस एंड x एक्सिस पे और y एक्सिस और x एक्सिस पे. एक है डिफरेंशियल और दूसरा है इंटीग्रल. You know the differential and the integral. The most common way of displaying pulse amplitude information is through the differential pulse height distribution. This is a differential pulse height distribution. Figure A gives a hypothetical distribution for purposes of the example. Now, the psica is a linear pulse amplitude scale that runs from 0 to a value larger than the amplitude of any pulse observed from the source. अब ये जो आपके पास x एक्सिस हैं ये 0 से स्टार्ट होकर किसी इनफाइनाइट वैल्यू को शो करता है जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के हाइट्स एम्पलीट्यूड नजर आ रहे हैं, h1, h2, h3 and 5 जो वेरिएट करते हैं
और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. दिस इज नोन एज अ पल्स. और जो y एक्सिस है, जो ऑर्डिनेट है, the ordinate is the differential number dn of pulses observed with an amplitude within the differential amplitude increment dh. अब ये जो dn है वो आपको शो हो रहा है y एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू dh. तो अब हर एक नंबर जो है उसको dh this is the amplitude and dn is the number, that is a differential number, और उसको प्लॉट किया है ऑर्डिनेट या y एक्सिस पे. सो यू हैव दिस dn over dh. तो हर एक के लिए dh यहाँ से आया और dn यहाँ पे आया. दिस y axis is now the differential number of pulses per differential pulse height. ये pulse height हो गया और ये आपके पास नंबर. तो with respect to this उनको प्लॉट किया है. So you have this distribution. The horizontal scale then has a unit of a pulse amplitude. जो x-axis है horizontal, that's जो pulse का जो amplitude है, this unit is in a volts. Where is the voltage scale has a units of a inverse amplitude, that is a volt inverse. अब अगर y-axis को आप देखें तो उसका जो स्केल है वो वोल्टेज इनवर्स को शो कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल है जो एक्स एक्सिस है उसको वोल्टेज भी शो कर रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर हम सपोज करें कि हमारे पास जो डिटेक्टर है, सपोज दैट डिटेक्टर इज लाइक फॉर एग्जांपल कि डिटेक्टर इस तरह हमने डिजाइन किया है कि सपोज दिस इज अ डिटेक्टर, यहाँ पर रेडिएशन जो आ रही है इसमें चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, क्यू नंबर ऑफ चार्जेस इज देयर. हमने आउटपुट में यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वोल्ट मीटर अगर हम कनेक्ट कर दें, सो वोल्ट मीटर जब चार्ज ज्यादा आएगा द वोल्टेज विल बी हायर, और अगर चार्ज कम आएगा डिफरेंस है दिस विल बी स्मॉलर. तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे वो करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो आपके पास जो वोल्टेज के सिग्नल्स हैं वो मुख्तलिफ वेरिएट करेगा. वो जो बिगिनिंग में हमने पढ़ा है कि अगर चार्जेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके हिसाब से वोल्टेज भी फ्लक्चुएट कर रहा है. अब जब y एक्सिस को x एक्सिस को आप देखते हैं, दैट्स गिव्स यू the amplitude corresponds to that voltage. That's why कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है उसका स्केल वोल्ट में. अगर इसको आप इस तरह कर लें कि आप चार्जेस ले रहे हैं तो चार्जेस आप लेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस. जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा चार्ज कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा. सो दिस टू आर इन अ सेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर वोल्टेज ज्यादा इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास उसका एक एम्पलीट्यूड आएगा, दूसरे के साथ दूसरा आएगा, एंड सो ऑन. ये आपके पास जो y एक्स एक्सिस है इट्स गोज लाइक दिस वे. अब जो हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है उसको हमने प्लॉट किया है दिस dn ओवर dh. जो dn है दिस इज अ नंबर, और उसको अगर आप dh के हिसाब से देख लें, सो dh का जो यूनिट है दिस इज अ वोल्ट, और यहाँ पर ये इनवर्स में है, तो y एक्सिस जो होगा दैट इज वोल्टेज इनवर्स. दिस इज ऑल अबाउट कि आप अगर कहते हैं कि जी वो वोल्टेज है, y एक्सिस या एम्पलीट्यूड है, ऑल द थिंग्स आर सेम. तो y एक्सिस को अगर आप वोल्टेज कहें, y एक्सिस को आप q कहें, y एक्सिस को आप एनर्जी, सॉरी y एक्सिस नो x एक्सिस. अगर x एक्सिस आपके पास चार्जेस हैं तो चार्जेस को कलेक्ट करने के लिए आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, तो वोल्टेज सिग्नल्स आ गए हैं. अब अगर वोल्टेज ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है. तो जितना भी ये आप पल्स साइड स्पेक्ट्रम को देखते हैं, तो ये जो x एक्सिस है, दिस x एक्सिस शोज यू हाउ मच वोल्टेज. इसका मतलब ये है कि H1 की एनर्जी H2 की एनर्जी से कम है, H2 की एनर्जी H5 की एनर्जी से कम है, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको आ रहे हैं नंबर ऑफ काउंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पल्स हाइट. तो पल्स साइड स्पेक्ट्रम बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि जी जो एनर्जी बेसिकली जो पल्स मोड हम डिस्कस कर रहे थे बिगिनिंग में, कि वो पल्स मोड बेसिकली आपको देता है
चार्ज, और चार्ज करस्पॉन्ड करता है एनर्जी के, और उस एनर्जी को आप काउंट करते हैं थ्रू वोल्टेज। तो अब अगर आप मैं उसको पल्स हाइट के वो कहूँ या चार्ज कहूँ या उसको वोल्टेज कहूँ, बात इस तरह एक है, या एनर्जी कहूँ। तो ये जो एक्स एक्सिस है, दिस गिव्स यू द एनर्जी और अ वोल्टेज। यूजुअली हम कहते हैं कि दिस इज अ वोल्टेज और दिस इज अ एनर्जी। The thing are same. Okay. The next one is the number of pulses whose amplitude lies between two specific values, h1, अब उसको जरा interpret करते हैं, h1 and h2 can be obtained by integrating the area under the distribution between those two limits as shown in the figure A. अगर आप मालूम करना चाहें कि जी नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास h1 और h2 ये जो हैच किया हुआ है, इस रीजन में आपके पास दो सिग्नल्स हैं h1 और h2, और इसमें नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं। तो सिंपल आपके पास अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखें तो ये dn over dh and this is h। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें या उसको एरिया अंडर द कर्व मालूम कर लें, तो एरिया अंडर द कर्व से इसका मतलब है नंबर ऑफ काउंट। सो हाउ वी कैन डू दिस वन, कि द नंबर ऑफ पल्सेस विद एम्पलीट्यूड h1 एम्पलीट्यूड और h2 एम्पलीट्यूड के दरमियान इसको आप इंटीग्रेट कर दें from h1 to h2 or dn over dh, तो this gives you the number। अब इस स्पेसिफिक में नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं कि इतनी विंडो में आपको इतने काउंट्स आएंगे, या उस काउंट्स को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स इस एनर्जी रीजन में वो इतने हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर चाहें कि जी वो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स मीन वी कैन इंटीग्रेट द होल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो 0 से स्टार्ट है, वो इंफिनिटी तक रन करते हैं। तो अगर आप इसको the total number of pulses n naught represented by the distribution can be obtained by integrating the area under the entire spectrum। तो entire spectrum 0 से रन करता है infinity तक dn over this dh। तो ये सारी जो पल्स हाइट स्पेक्ट्रम है उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस या हाउ मेनी नंबर ऑफ काउंट्स यू हैव। तो अब इससे हम वो जो बिगिनिंग में हम कह रहे थे कि अब काउंटिंग मोड में भी आप उस पल्स को ले जा सकते हैं, कि यहाँ पर अगर आप उसकी जो बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया था कि दिस ऑफन इज द पल्स काउंटिंग, कि चार्ज कितने हैं और उसके नंबर्स कितने हैं। सो Q इज इक्वल टू n टाइम्स E। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा। सो वी कैन से कि यहाँ पर ये जो Q है, दिस Q इज इक्वल टू n टाइम्स E अगर चार्ज है। तो अगर आप n मालूम करना चाहें या आपके पास चार्ज आ गया है and you want to n, then you will just do the same mathematics you are familiar with। So ये आपके पास एक इंफॉर्मेशंस आ सकती हैं या आती हैं फ्रॉम दिस होल स्पेक्ट्रम के नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं,